हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, एंड टुडेज लेक्चर वी विल गो थ्रू isomerism. Isomerism or isomers formation occurred in carbohydrate or saccharides. So we have a cyclic is a non-cyclic structure of monosaccharides. Over there, the most common monosaccharides hexose is having the same molecular formula, that is C6H12O6, but different structural formula. So on the basis of that we will move towards the isomers. What is an isomer? First, isomerism or isomer formation. तो आइसोमर्स को जब हम डिफाइन करते हैं, आइसो मीन्स सेम एंड मर्स मीन्स पार्ट. It is that phenomena in which the molecule will having the same molecular formula but different structure, having a different structure. It is that phenomena in which the molecule is having same molecular formula but different structure formula. The differentiation will be having different structures is called isomerism. Isomerisms को जब हम divide करते हैं, so we can divide this isomerism. There are different types of isomerism, but we will discuss these three types over here. That is, the first one is structural isomerism. Structural isomerism is, we have already drawn a structure of glucose and fructose, which are an isomer of each other. Glucose and fructose. And the another one is optical isomerism. And the third one is stereoisomerism. Stereomer or stereoisomerism. So first we will go through this structural isomerism. In case of structural isomerism, there will be a difference having the same molecular formula but different structure. जिस तरह glucoses हैं, fructoses हैं, along with galactose and mannose, all these are an isomer of each other, as we have studied it before in my previous one lecture. कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में तो चूंकि इसको हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं, इसमें फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंस भी हैं, लेकिन चूंकि इसका मोलिकुलर फार्मूला सेम है ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का या फ्रक्टोज का, दैट इज C6H12O6. लेकिन जब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएशन पाई जाती है, और वो डिफ्रेंशिएशन ये है कि हमारे पास जब हम देखते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे aldehyde functional group है, and second carbon will having hydroxyl group at right hand side, and the third carbon will having rotation of that hydroxyl group, and at fourth one carbon atom again the hydroxyl is at right hand side and hydrogen at left hand side, and the sixth, that is fifth one, yeah, this fifth one is again having hydroxyl at right hand side and hydrogen at left, and sixth one is CH2OH. Same is the case with fructose, which is having first one carbon atom having alcoholic functional group, CH2OH, that is hydroxyl along with one hydrogen, and carbonyl carbon or ketonic carbon is its second one carbon atom, and the third one is having hydrogen and hydroxyl, and fourth one is again having hydroxyl and hydrogen, and that is fourth, fifth one is hydroxyl and hydrogen, sixth one is again CH2OH. अब अगर इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को काउंट कर दें तो इसके इन सबके नंबर बराबर आएंगे C6H12O6 के. सो दीज टू आर एन आइसोमर ऑफ ईच अदर. और अगर हम आते हैं टुवर्ड्स द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वांट टू नो अबाउट दैट. और जो मेरे BS 5th के कुछ स्टूडेंट्स थे वो यही कह रहे थे कि मैम हमें इसकी क्लास मिस हो गई थी या उसको समझ नहीं आई थी, तो वो इधर पे आके यहाँ से आप समझ सकते हैं. व्हाट इज एन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ऑप्टिक मींस लाइट. सो ये वो आइसोमेरिज्म है जो कि बेस्ड है ऑन द रोटेशन ऑफ लाइट. लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे पास लाइट में बी रोटेटेड टुवर्ड्स clockwise or anti-clockwise,
there will be a two type of rotation of light shown by not this ordinary light, but जब हम light को pass करेंगे on polarizer, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसको बोलते हैं, जब हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट को पास करते हैं थ्रू अ पोलराइजर इट विल बिकम प्लेन पोलराइज्ड। और फिर हम अपने शुगर सोल्यूशन पर से पास करेंगे, लेकिन फर्स्ट वी विल डिवाइड इट इनटू अ टू ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन ऑफ लाइट। फिर इसको मैं डिटेल में समझाती हूँ। दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेशन and dextro rotation and levo rotatory या levo rotatory, ठीक, levo rotation। सो हमारे पास जो डेक्स्ट्रो रोटेशन है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। वो कैसे रोटेट करते हैं? क्लॉकवाइज। और इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी वो हम कैपिटल डी के साथ देते हैं, और सिंबॉलिकली वी कैन रिप्रेजेंट इट विद पॉजिटिव सिंबल, ठीक है। अल्फाबेटिकली हम कैपिटल डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको जो सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं दैट इज विद पॉजिटिव सिंबल। और लीवो रोटेशन जो है दैट इज एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन of plane polarized light, and it is alphabetically shown by capital L and symbolically it is represented by negative symbol। so हम क्या करते हैं इसी plane polarized light के साथ हमारे पास ये मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मिटा देती हूँ। इसके साथ अगर यहाँ पे मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फिनोमेना को डिस्कस करते हैं हम, कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोई एक ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक। ऑर्डिनरी लाइट से हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑर्डिनरी लाइट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनसे हर एक डायरेक्शन में रेडिएशन निकल रही हैं, एंड दीज आर सिंपली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दीज आर व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इसको अगर हम किसी भी पोलराइजर पर से पास कर दें, ठीक है, तो जब पोलराइजर पर से पास करेंगे तो इसके डायरेक्शन जो होगी वो एक प्लेन पे आ जाती हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दिट शुड बी इन वन डायरेक्शन, इसकी जो प्रोपिगेशन होगी वो इन वन डायरेक्शन आ जाती है। सो दैट इज कॉल्ड पीपीएल। पीपीएल मींस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमारे पास ये अगर हम पास कर दें थ्रू आवर शुगर सोल्यूशन, अगर हम यहाँ पे एक बीकर ले लें, उसमें हमारा एक सेकेराइड सोल्यूशन पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी सेकेराइड सोल्यूशन है, ग्लूकोज का सोल्यूशन है, सक्रोज का है, या फिर हमारे पास फ्रक्टोज का है, जिस भी शुगर का सोल्यूशन यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस पे ये हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कर दें। और अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट अपना डायरेक्शन जो है, यानी कि ये अगर ये अपना डायरेक्शन क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, क्लॉकवाइज ये ज्यादा रोटेशन का शो कर दे, मीन्स कि ये यहाँ पे हमारे पास अपने डायरेक्शन से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुद को रोटेट करते हैं। सो इसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर यही वाला प्लेन पोलराइज्ड लाइट अपने डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें, यानी वो सीधा ना रहे, जिस तरह वो जिस प्लेन में जा रहा था उस प्लेन में नहीं बल्कि खुद को रोटेट कर देते हैं। और अगर वो राइट हैंड साइड रोटेशन है, राइट हैंड साइड रोटेशन मींस क्लॉकवाइज रोटेशन, और अगर वो क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड रोटेशन शो करते हैं इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड रोटेशन शो करते हैं सो वी विल कॉल इट लीवो रोटेटरी। इसको फिर हम क्या कहेंगे? लीवो रोटेटरी। और इसको सिंबल नेगेटिव सिंबल के साथ शो करते हैं लीवो रोटेटरी को, और डेक्स्ट्रो को शो करते हैं विद पॉजिटिव सिंबल। अच्छा, अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं, चूंकि मैंने डिस्कस भी करना है इन केस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कि अगर हमारे पास कोई भी सेकेराइड सोल्यूशन हो तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मोस्टली हमारे पास नेचर में जो शुगर पाए जाते हैं, दोज मोस्टली द सेकेराइड्स आर शुगर यूनिट एंड नेचर इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। सो 90% या उससे अबाव परसेंटेज हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही होती हैं शुगर्स की, लीवर रोटेटरी कम पाए जाते हैं।
लेकिन अगर हम इन केस ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं या सेकेराइड्स, जिस तरह हमारे पास शुगर है, शुगर की बात करते हैं और शुगर सोल्यूशन पर से हम इस लाइट को पास करेंगे तो फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मेनली हमारे पास जो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो बेस्ड है इसी लाइट के रोटेशन पे। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इन केस ऑफ सक्रोज, चीनी। ठीक है, सक्रोज क्या चीज है? सक्रोज जो है वो हमारे पास टेबल शुगर है। वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क मी, मैम व्हाई इट्स कॉल्ड टेबल शुगर? बिकॉज it is used most commonly in our dining table, that is why it's called table sugar, and sodium chloride is called table salt. तो इसलिए हम इसको टेबल शुगर बोलते हैं। और अगर हम इसी लाइट को, पीपीएल को पास करते हैं थ्रू सक्रोज, ठीक है, सक्रोज मीन्स कि मैंने कहा कि वो अगर यहाँ पे मैं सोल्यूशन ले लूं, कौन सा सोल्यूशन? चीनी का सोल्यूशन ले लूं, यानी कि सक्रोज सोल्यूशन ले लें। लेट सपोज मैं यहाँ पे ड्रा करती हूं कि ये हमारे पास है सक्रोज सोल्यूशन। ठीक, मैंने लेट सपोज सोल्यूशन बना लिया है सक्रोज का, 1% सोल्यूशन बना, 1 ग्राम सक्रोज को पानी में डिसॉल्व कर दिया है 10 ml में या 20 ml में, और इस पे हम पास कर रहे हैं क्या चीज? पीपीएल। व्हाट इज पीपीएल? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो थी, अगर ये हमारे पास, चूंकि सक्रोज जब पहले अपनी पीपीएल की रोटेशन दे रहे थे, वो दे रहे थे अबाउट 66.5 डिग्री प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लेट सपोज ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी जो स्ट्रेट अवे जा रही थी, किस डायरेक्शन में रोटेट किया? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेशन दे रहे थे, लेकिन कितनी डिग्री पे? 66.5 डिग्री पे। तो सक्रोज जो था वो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कितने डिग्री पे रोटेट कर रहा था? 66.5 डिग्री। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा था। जब ये किस फॉर्म में था? डाइसेकेराइड फॉर्म में था। जब ये सक्रोज फॉर्म में था तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा था 66.5। लेकिन जब हमने इसी सक्रोज को क्या किया? हाइड्रोलाइज कर दिया। हाइड्रोलाइज करके, हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो वो हम एसिडिफाइड वाटर के साथ करते हैं। लेट सपोज इसी सक्रोज में हमने H3O डाल दिया, लिटिल बिट वाटर अलॉन्ग विद एसिड, वाटर को एसिडिफाइड करके हमने डाल दिया, तो सक्रोज विल गिव्स अस फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। क्या चीज देंगे? 2 मोनोसेकेराइड, वन इज फ्रक्टोज एंड अदर वन इज ग्लूकोज। ये 2 मोनोसेकेराइड यूनिट जब ये दे देते हैं, सो हमारे पास जो फ्रक्टोज है और ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड फ्रक्टोज जो है वो लिविरोटेटरी होता है। लेकिन ये दोनों किस तरह ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को चेंज करेंगे? तो ग्लूकोज जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, लेट्स सपोज ये हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये मैं मिटा देती हूँ ऊपर से, और फिर इसको यहाँ पे क्लियरली ड्रा करते हैं कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास सक्रोज है। Sucrose hydrolyzes into a 2 monosaccharide unit, glucose and fructose। और इसमें जो हमारा वो था प्लेन पोलराइज्ड लाइट था, लेट सपोज कि वो जा रहा था स्ट्रेट अवे। जब इन केस ऑफ सक्रोज वो रोटेशन शो कर रहा था इस साइड पे, कितनी डिग्री? दैट इज 66.5 डिग्री टू क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस डी, वो कौन सी रोटेशन दे रहा था? डी पॉजिटिव, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा था। जब ये चीनी किस फॉर्म में थी? डाइसेकेराइड फॉर्म में थी, सक्रोज फॉर्म में थी। अब हमने इसको हाइड्रोलाइज किया 2 मोनोसेकेराइड में, तो फ्रक्टोज जो है वो इसको किस डायरेक्शन में कितने डिग्री रोटेशन देगा? ये लीवो रोटेशन देगा, और इसको लीवो रोटेट करके ये प्लेन पोलराइज लाइट जो है ये लीवो रोटेशन शो करेगा, और लीवो रोटेशन शो करके कितने डिग्री रोटेशन करेगा? यानी ये प्लेन पोलराइज लाइट जो है ये रोटेट होगा टुवर्ड्स that is it will rotate it towards the dextrorotatory or levo. This is fructose is levo, fructose is levo, and this glucose is dextro, and this fructose will rotate this plane polarized light towards levo rotation। लेफ्ट हैंड साइड पे ये रोटेशन शो कर रहा है, लेकिन कितना शो करेगा? ये शो करेगा अबाउट 52.7 डिग्री। कितना शो कर रहा है? 52.7 डिग्री रोटेशन शो कर रहा है।
So glucose will rotate this plane polarized light, and this fructose, this is the dextrorotate. Oh, this is the rotation of glucose, means towards clockwise. Sorry, as I have told you that glucose is dextrorotatory, so it will rotate the plane polarized light towards a right hand side. This is my right hand side, so it will rotate that light about 52.7 degree from the plane polarized, from the straight direction. This PPL will show a rotation towards right hand side 52.7 degree. और ये ग्लूकोज की रोटेशन होगी तो ये क्या थी, ग्लूकोज विल रोटेटेड क्लॉकवाइज, जैसे मैंने ऊपर लिखा है क्लॉकवाइज, और इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी वो पॉजिटिव रहेगी। अब जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज इसी लाइट को रोटेट कर देगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, लीवो रोटेटरी है फ्रक्टोज। इसी लाइट को जब वो रोटेट करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये डॉटेड लाइन के साथ शो कर रही हूँ कि ये रोटेशन शो कर रहा है। सो ये यहां से अगर हम लेते हैं तो हम कहते हैं ये -92 डिग्री, कितना, -92 डिग्री रोटेशन दे रहा है। कौन दे रहा है, फ्रक्टोज टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। इस पीपीएल को ये रोटेट कर देता है एट -92 डिग्री। सो -92 और 52.7 में कितना फर्क आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट इज अबाउट -39.3 डिग्री। 3 आ रहा है, 99.3, या दैट इज 92.4, ठीक। Okay, now this -39.3 degree, this is the difference of rotation between dextro and levo. So it is negative is more than that of positive. Positive rotation is about 52.7 degree, which is shown by glucose towards right hand side, positive, and -92.4 is the levo rotation, which is shown by fructose towards left hand side. So the difference between these two is -39.3 degree, which shows that overall the rotation is towards left hand side more. So the sucrose will become overall, when it is get hydrolyzed, it will show which one rotation more, levo rotation. So we can say that after hydrolysis that sucrose will become levorotatory instead of dextrorotatory. हमने कहा कि before hydrolysis वो dextrorotation सिर्फ शो कर रहा था 66.5 डिग्री, लेकिन आफ्टर हाइड्रोलिसिस जब हमने रोटेशन की कंपैरिजन कर दी कि ग्लूकोज इसको राइट हैंड साइड पे 52 डिग्री रोटेट कर रहा था, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रक्टोज ज्यादा रोटेट कर रहा था, वो ऑलमोस्ट -92.4 डिग्री रोटेशन शो कर रहा था। तो इन दोनों में डिफरेंस जो था वो नेगेटिव की ज्यादा आ रही थी। नेगेटिव वैल्यू मींस -39.3 डिग्री। लीवो रोटेशन इज मोर देन दैट ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेशन, so this hydrolyzed solution will show levo rotation. So we can say this sucrose solution after hydrolysis will become change its nature. That's why we call sucrose as an invert sugar. Why sucrose is called invert sugar? तो इसका जवाब इधर ही मौजूद है कि हमारे पास जब हम शुगर को हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो वो बजाय इसके कि डेक्स्ट्रो रोटेशन शो कर दे, वो लीवो रोटेशन शो कर देते हैं। लीवो रोटेटरी ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू डेक्स्ट्रो रोटेशन। सो इसको हम कहते हैं कि वो जब सक्रोज या डाइसेकेराइड फॉर्म में था तो वो डेक्स्ट्रो रोटेशन शो कर रहा था, और जब ये मोनोसेकेराइड फॉर्म में आया तो ये लीवो रोटेशन शो कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल सक्रोज इज एन इनवर्ट शुगर। एंड जो हमारे पास सक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। और ये डायग्राम जो है ये एज इट इज आपने पेपर में भी ड्रॉ करना है और इसको नोट कर दें। Okay, now let's comes towards optical rotation हो गया। Now we will comes towards stereoisomerism. What is stereoisomerism? Stereoisomerism, as its name indicate, इसको हम डिवाइड करते हैं। स्टीरियो मीन्स के स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंट आ जाता है। स्टीरियो मीन्स के हमारे पास कॉम्पोजिशन सेम रहती हैं लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एन एटम में डिफरेंस आ जाता है। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू टाइप्स। वी विल डिस्कस इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें क्या आता है, इट्स हैविंग सेम कॉम्पोजिशन
मीन्स अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन डिफरेंस कहां पे आता है? डिफरेंस इज इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम। इन स्पेशियल यानी स्पेसिस में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम में डिफरेंस आता है। एटम इज डिफरेंट, सेम कॉम्पोजिशन बट different, but difference is in spatial arrangement of atoms. So वो एक एटम में भी हो सकता है, वो 2 या 3 एटम में भी, लेकिन मोस्टली वो एक एटम पे डिफ्रेंशिएशन आती है। जिस तरह हमारे पास है एनेंशियोमर, आपने नाम सुना होगा, एंड डायस्टीरियोमर्स या डायस्टीरियो आइसोमर्स हम कहते हैं। एनेंशियोमर हम बोलते हैं विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। एनेंशियोमर कैसे कहते हैं? मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मिरर इमेजेस मींस कि जिस तरह हमारे पास डी और एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, डिक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी। डी एल के प्रोनाउंसिएशन का आपको पता चल गया। डी और एल बनते कैसे हैं? जिस तरह हमारे पास हम एग्जांपल ले सकते हैं इसकी, डी व एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बाकी सारा उसका मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ एक कार्बन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल के ग्रुप के डिफरेंस की वजह से इसको हम डी और एल आइसोमर कहते हैं। सो उसको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह इसके स्ट्रक्चर में हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये डी ग्लूकोज है और ये एल ग्लूकोज है। सो हमारे पास जो डी और एल ग्लूकोज है, इसको अगर हम देखते हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। Carbonyl carbon या aldehyde functional group along with hydroxyl and hydrogen, and the third carbon will show a rotation of that hydrogen and hydroxyl. Fourth carbon will again having hydrogen and hydroxyl, और फिर हमारे पास ये आ जाता है CH2OH। और अगर हम देखते हैं हमारे पास जब ये राइट हैंड साइड पे अगर हम स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर से ये देखते हैं कि ये डी है या एल है, तो हमें कहां से पता चलेगा? हमें पता चलेगा सेकेंड लास्ट कार्बन से, फिफ्थ वाले कार्बन से। अगर फिफ्थ वाले कार्बन पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पे हो, तो इस शुगर को हम कहते हैं डी शुगर या डी ग्लूकोज, क्योंकि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है। और अगर ये सेकेंड लास्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे हो, तो इसको हम कहते हैं एल। अगर ये लिसन केयरफुली, अगर ग्लूकोज के केस में मोस्ट कॉमन शुगर यूनिट ग्लूकोज जिसकी हम एग्जांपल लेते हैं, अगर इसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द सेकेंड लास्ट कार्बन, फिफ्थ वन कार्बन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट राइट हैंड साइड पे हो, सो यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिसाइड करती है इन केस ऑफ स्ट्रेट चेन कि ये हमारे पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लीवोरोटेटरी है। ये हमें बताती है कि ये हमारा ग्लूकोज जो है ये डी है या एल है। डी एल मीन्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लीवोरोटेटरी। और अगर ये फिफ्थ कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पे हो, सो दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे हो, सो दैट इज कॉल्ड लीवोरोटेटरी। अब ये जो ग्लूकोज मैंने ड्रा किया है, दैट इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इट राइट हैंड साइड, सो वी विल कॉल इट डी ग्लूकोज। क्या कहेंगे इसको? डी ग्लूकोज। और इसमें मैं अल्फा और बीटा को लिटिल बिट एक्सप्लेन कर रही हूं। हमारे पास अगर ये हम देखते हैं कि कार्बोनाइल कार्बन एटम, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप और कार्बोनाइल कार्बन एटम, जिसमें हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन मौजूद है, दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, so it will attract the shared pair of electron towards itself, so oxygen will become partially negative and this carbon will get partial positive। और अगर हम देखते हैं तो ये कार्बन मिल सकता है किसी भी कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, जिसमें हमारे पास सबके सब कार्बन पे हाइड्रोक्सिल राइट हैंड साइड पे मौजूद है, एक्सेप्ट देन दैट ऑफ थर्ड कार्बन एटम, जो कि मैं रिपीटेडली एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब भी ड्रा करना हो, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल रोटेशन शो करेंगे फॉर स्टेबिलिटी। और अगर ये कार्बन नंबर 1 जाके बॉन्ड बना सकता है कार्बन 3 के साथ भी, कार्बन 3, कार्बन 4 या कार्बन 5 या कार्बन 6 के साथ, लेकिन जितने भी स्ट्रक्चर बन रहे थे उनमें अगर ये कार्बन 4 के साथ जाके मिले या फिर 6 के साथ जाके मिले, तो ये पेंटागन या टेट्रागन या
हेप्टागोन यानी कि 4 रिंग वाला, 4 कॉर्नर्ड रिंग, 5 कॉर्नर्ड रिंग या 7 कॉर्नर्ड रिंग, ये सारे अनस्टेबल थे कंपेयर टू दैट ऑफ hexagon. Hexagon is much more stable. That's why this carbonyl carbon atom will form a bond with fifth one, second last carbon atom. The question arises in most of the student mind is कि क्यों हमारे पास ये कार्बोनाइल कार्बन जाके किसी और कार्बन के हाइड्रोक्सिल के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि जाके ये फिफ्थ के साथ बना लेता है. द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज दैट द हेक्सागोन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दैट ऑफ पेंटागोन और हेप्टागोन. यानी कि हमारे पास ये कार्बोनाइल कार्बन अगर 6th कार्बन के साथ जाके मिलेगा तो हेक्सागोन नहीं बनेगा, क्योंकि एक कॉर्नर हेक्सागोन में या पेंटागोन में या जितना भी ट्राइगोन है उनमें हमारे पास एक कॉर्नर हमेशा से ऑक्सीजन पकड़ लेता है. किसका ऑक्सीजन? हमारे कार्बोनाइल कार्बन का ऑक्सीजन. तो हमारे पास अगर ये जाके मिलेगा 6th के साथ तो हेप्टागोन बनेगा जो कि अनस्टेबल होगा. तो हमारे पास क्या होगा? हमेशा से कार्बन नंबर 1 इन केस ऑफ 6 कार्बन हेक्सोसिस, दिस विल कंबाइन दिस hydrogen in hydroxyl bond is again polar. Hydrogen is partial positive and oxygen is partial negative. इन सब के हाइड्रोक्सिल इसी तरह है, लेकिन जाके ये जो हाइड्रोजन है it will attack on this oxygen and will form a bond with this oxide ion. और जो इसका ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन है ये जाके बॉन्ड बना लेगा. बॉन्ड तो नहीं बना रहा लेकिन अट्रैक्शन कर देगा यहाँ पे कार्बन के साथ. बॉन्ड बना रहा है, क्यों नहीं बना रहा? ये इट विल फॉर्म अ ब्रिज, यहाँ पे ब्रिज बनेगा और ये हाइड्रोजन जाके इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा. अब डिपेंड करता है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये चूंकि हमारे पास ये कार्बोनाइल कार्बन जो है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ऑलरेडी भी मैं बता चुकी हूँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसकी शेप क्या बन रही है? प्लेनर है. तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 5th का, ये जाके अटैक कर सकता है फ्रॉम फ्रंट, प्लेनर है ना, या फ्रॉम बैक. यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप यूं भी आ सकता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बैक से भी आ सकता है और अटैच हो सकता है. तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज है. और अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके मिल रहा है इसी कार्बोनाइल कार्बन के फ्रंट से, लेट्स सपोज हम कहते हैं ये फ्रंट अटैक है, फ्रंट अटैक ऑफ व्हाट? हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ 5th वन कार्बन एटम, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 5. ये अटैक कर रहा है कार्बोनाइल कार्बन के पहले वाले कार्बन के ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम पे जाके अटैक कर रहा है. तो ये अटैच होगा इन द फॉर्म ऑफ, अगर ये यूं अटैच हो रहा है, 2nd कार्बन इज सेम, 3rd कार्बन इज अगेन सेम, बाकी सब्स्टिट्यूशन सारे सेम हैं, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे ब्रिज फॉर्मेशन हो रही है. मींस ये वाला कार्बन जो है ये इसके ऑक्सीजन के साथ ब्रिज बना रहा है. अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो रिंग के अंदर आ गया, ये ब्रिज बन गया, ये रिंग के अंदर आ गया, दैट इज कॉल्ड अल्फा. राइट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड, सो इट इज कॉल्ड अल्फा. और ये ऑक्सीजन जो है ये ब्रिज बना रहा है विद द कार्बन नंबर 1 ऑफ दैट ग्लूकोज यूनिट. और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर हम ड्रा करेंगे इन केस इन रिंग, तो वो रिंग में भी मैं ड्रा करके दिखाती हूँ. तो ये फ्रंट अटैक हो रहा है. क्या हो रहा है? फ्रंट अटैक ऑफ दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 5 ऑन कार्बोनाइल कार्बन एटम. और अगर ये बैक अटैक हो रहा हो तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगी सिर्फ उसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाती है. यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो जाती है. अगर ये फ्रंट अटैक ना हो बल्कि बैक पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक कर रहा है, क्या कर रहा है? बैक से हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 5 अटैक कर रहा है. सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल बी एट लेफ्ट हैंड साइड, hydrogen will be inside to that ring, so that will become called beta glucose. यहाँ पे फिर हम इसको क्या कहेंगे? बीटा ग्लूकोज. जब ये फ्रंट से अटैक कर रहा था तो इसको हम कह रहे थे अल्फा ग्लूकोज, और जब ये बैक से कर रहा है सो दैट इज कॉल्ड बीटा ग्लूकोज. अच्छा, अब हमारे पास अगर हम देखते हैं कि ये अल्फा एंड बीटा हो गए, अगर हम इसको रिंग फॉर्म में देख लेते हैं, ये तो इसकी स्ट्रेट कि हाउ दिस अल्फा एंड बीटा विल फॉर्म.
दिस अल्फा बीटा इज फॉर्म्ड बाय द टेक ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 5। अब हम रिंग में देखते हैं ताकि सबको ये अल्फा एंड बीटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वी विल ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज लाइक दैट। This is my carbonyl carbon atom, glucose carbonyl carbon atom, and this is second one, third one, fourth one, and this is fifth one, along with this sixth carbon atom. Look, हमारे पास मैंने एक और भी एक रफ ट्रिक बताई थी कि जितने भी राइट हैंड साइड पे हैं तो वो डाउन में लिखें सारे ग्रुप्स रिंग में। जिन स्टूडेंट को याद नहीं होते उसको स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनानी आती है, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन बनानी आती है, हावर्थ प्रोजेक्शन बनानी नहीं आती। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जितनी भी राइट हैंड साइड पे ग्रुप्स हैं वो सारे डाउन पे अटैच कर दे। लेकिन फिर भी आपको जब समझ आ जाए तो इसकी मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल में। अच्छा, अब जब हम ड्रा करते हैं तो हम पहले ड्रा करते हैं अल्फा। अल्फा में हमारे पास होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन नीचे रहेगी, और या हम आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक। आगे आप लोग खुद ये अटैचमेंट कर दें। अच्छा, ये मैं ब्लू के साथ कर देती हूँ ताकि डिफरेंस हो, ठीक। हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन। Okay, look, this carbonyl carbon atom which is also called enomer, anomeric carbon, ये वो कार्बन है जहां पे हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। किसका डिफरेंस आ रहा है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल पोजीशन की। यानी कि अभी जो मैं ड्रा कर रही हूं ये वाला किसका स्ट्रक्चर है? दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये किसका स्ट्रक्चर है? अल्फा डी ग्लूकोज। और यहां पे मैं ड्रा करती हूं बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। लुक, ठीक, ये हमारे पास है। इसमें हम हाइड्रोक्सिल की पोजीशन ऊपर और नीचे कर देते हैं। बाकी जो है हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल उसकी पोजीशन सेम लेके जिस तरह हमारे पास ग्लूकोज में होते हैं। लुक, यहां पे सारा के सारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बाकी सेम है, दोनों स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन यहां पे हमने क्या किया है, ये हम देखते हैं कि यहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन सिर्फ एक कार्बन पे डिफरेंट है, और वो कौन सा कार्बन है? वो कार्बोनाइल कार्बन है। जब स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम किसी एक कार्बन पे डिफरेंट हो, इसको हम कहते हैं इपीमर। उस डाइस्टीरियोमर को हम क्या कहते हैं? इपीमर। वो नॉन सुपरइम्पोजेबल होते हैं, दे आर नॉट मिरर इमेजेस, नॉट mirror images of each other। वो एक दूसरे के mirror images नहीं हो सकते, not superimposable on each other, superimposable on each other, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक। और अगर हमारे पास हम देखते हैं कि ये अल्फा डी ग्लूकोज है तो ये क्या है? ये बीटा डी ग्लूकोज है। सो इसको हम कह सकते हैं कि दीज टू आर एन एनोमर ऑफ ईच अदर। ये क्या है? एक दूसरे के एनोमर्स है। एनोमर्स किसे कहते हैं? एनोमर्स आर इपीमर। व्हाट इज इपीमर? इपीमर आर डाइस्टीरियोमर। What is डाइस्टीरियोमर? यानी ये सारा कुछ हमने अभी एक्सप्लेन करना है, लेकिन फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। हम इसको अल्फा और बीटा रिंग में किस बेस्ड कहते हैं? जिस तरह मैंने कहा हाइड्रोक्सिल की पोजीशन फिफ्थ कार्बन पे राइट हैंड साइड पे हो तो इसको हम डी कहते हैं, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो इसको हम एल कहते हैं। सेम लाइक दैट अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे हो, इट इज इन ट्रांसपोजिशन टू दैट ऑफ कार्बन नंबर 6 बंच्ड ग्रुप। अगर ये इसके साथ ट्रांस्ट पोजीशन में हो सो इसको हम कहते हैं क्या चीज? अल्फा ग्लूकोज। या मैंने स्टूडेंट को क्लास में एक ट्रिक बताई थी, द मोस्ट इजीएस्ट ट्रिक इज कि हाइड्रोजन अबव हो, ए इज फॉर अबव, ए इज फॉर अल्फा, ताकि हाइड्रोजन के साथ आपको याद रहे। लेकिन कॉन्सेप्ट इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ज्यादा पक्का है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग से बिलो हो तो इसको हम कहते हैं, या बिलो द रिंग हाइड्रोक्सिल हो तो इसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज या अल्फा ग्लूकोज। और अगर हाइड्रोजन अबव हो तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोक्सिल डाउन ही होगा, तो इसको हम अल्फा डी ग्लूकोज कह सकते हैं। इसके ऑपोजिट में
अगर ये हाइड्रोक्सल और कार्बन नंबर 6 का CH2OH ग्रुप आपस में सिस फॉर्म में पड़ा हुआ हो तो इसको हम कहते हैं बीटा, बीटा डी ग्लूकोज। या अगर इसका कॉन्सेप्ट भी आप यूं लेते हैं कि हाइड्रोजन जब बिलो द प्लेन हो, बिलो द रिंग हो या नीचे हो, हाइड्रोजन बिलो, तो वो वाला जो ग्लूकोज होगा दैट विल बी बीटा, बी बिलो बी बीटा। तो हाइड्रोजन के साथ कॉन्सेप्ट याद करना भी आसान है, और हाइड्रोजन के साथ नहीं करते तो हाइड्रोक्सल के साथ कर दे, हाइड्रोक्सल के साथ या फिर ट्रांस और के साथ, तो आपकी मर्जी है, तीनों के साथ आप याद मेमोराइज कर सकते हैं कि व्हाट इज अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज। नाउ वी विल कम्स टुवर्ड्स diastereoisomers which are having config diastereoisomer which are not a mirror images of each other. Over there will be a difference in the configuration of only one carbon atom. It only one carbon atom, and that one carbon will be a chiral carbon atom. There will be a difference in configuration. It only one carbon atom. यहां पे लिख लें आप, there will be a difference in configuration and only one chiral carbon atom. यहां पे बात आती है chiral कार्बन की। कायरल कार्बन आप कैसे कहते हैं? कायरल कार्बन जब हम ग्लूकोज में बात करते हैं तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में ड्रा कर दूंगी ग्लूकोज की। पहले ये अल्फा और डी बीटा ग्लूकोज जो है इसका स्ट्रक्चर आप लोग ड्रा कर दें, अपने पास नोट कर दें। सो कायरल कार्बन को पहले हम द क्वेश्चन अराइजेस ओवर हियर इज व्हाट इज कायरल कार्बन। अगर हमें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के साथ ज्यादा जानकारी है तो हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से ही जान लेते हैं कि व्हाट इज कायरल कार्बन एटम। यानी कि अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 1 is not attached to a 4 different group. It is attached to oxygen, hydrogen and this one group, carbon with hydroxyl and hydrogen. तो ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता। सेम लाइक दैट इस टर्मिनल कार्बन को देख लें, इसके साथ एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हाइड्रोजन, थर्ड पे हाइड्रोक्सल, एंड यहाँ पे कार्बन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन ऑक्सीजन अटैच है। तो ये भी हमारे पास एक दिस इज दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं हो सकता। लेकिन जब हम बीच वाले कार्बन सारे देखते हैं तो ये कायरल कार्बन है। लुक एट दिस वन कार्बन एटम, ये कार्बन एक साइड पे हाइड्रोक्सल दूसरे के साथ हाइड्रोजन के साथ अटैच है, लेकिन इस साइड पे ये होल CH2OH ग्रुप के साथ अटैच है। लेकिन इस साइड पे जब हम देखते हैं तो ये अटैच है विद COH एंड H ग्रुप। इसी सेम लाइक डेट अगर हम इस ग्रुप को देखते हैं तो ये यहाँ पे इस ग्रुप के साथ अटैच है, ये दो साइड पे हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन के डिफरेंट पोजीशन पे अटैच है, और इस साइड पे ये होल COH एंड H के साथ अटैच है, तो ये भी कायरल। तो इन कार्बन्स को हम कायरल कार्बन्स बोलते हैं जो इन बिटवीन टर्मिनल कार्बन्स पड़े हुए हैं। तो ये सारे कायरल कार्बन्स हैं, ये वाला नहीं है, टर्मिनल कार्बन है ये। तो ये जो 4 कार्बन है दीज आर कायरल कार्बन। तो जब इसी कायरल कार्बन में किसी भी एक कार्बन के पे स्पेशल अरेंजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड डिफरेंस हो जाती है, सो दैट इज कॉल्ड डायस्टीरियोमर। लेकिन ये डायस्टीरियोमर एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे, ये एक दूसरे, इसमें डिफरेंस आएगी इसके कॉन्फ़िगरेशन में। ये सिंगल जिस तरह हम एग्जांपल लेते हैं ना ग्लूकोज और गैलेक्टोज की, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायस्टीरियोमर। इसमें कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंस होता है, किस चीज का? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल का। गैलेक्टोज के केस में हम देखते हैं तो हाइड्रोक्सल लेफ्ट हैंड साइड पे है, इन केस ऑफ ग्लूकोज दिस इज इट राइट हैंड साइड, हाइड्रोक्सल राइट पे है, हाइड्रोजन लेफ्ट पे है। सो कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंस आता है हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल का, सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायस्टीरियो आइसोमर्स। लेकिन जब हम साइकिल में बात करते हैं तो साइकिल में जब हमने ये अभी अल्फा और बीटा का देखा तो कार्बोनाइल कार्बन पे अल्फा और बीटा में डिफरेंस आ रही थी, लेकिन उसमें भी अल्फा बीटा ग्लूकोज की जब हम बात कर रहे थे, जब उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप नीचे था तो हमने इसको बोला अल्फा ग्लूकोज, ठीक। और जब हमारे पास कोई दूसरा ग्लूकोज था उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल कार्बन पे जब हाइड्रोक्सल ऊपर था और हाइड्रोजन नीचे था, हमने इसको बोला बीटा ग्लूकोज। सो ये हमने जो अल्फा और बीटा बोला है ये इस कार्बोनाइल कार्बन के बेस पे बोला है। कार्बोनाइल कार्बन मींस फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। इसमें ये जो डिफरेंस आ रहा था
हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल की पोजीशन का, ये कौन से हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल पोजीशन किस कार्बन पे डिफरेंट थे? हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल पोजीशन किस कार्बन पे डिफरेंस थे? एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन मींस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पे। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल बेस्ड पे। इस एक में हाइड्रोक्सिल ऊपर है, दूसरे में हाइड्रोक्सिल नीचे है, तो इस बेस पे हमने इसको कहा कि दीज आर एन ईपीमर, या चूंकि कार्बोनाइल कार्बन है सो इसको हम एनोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोमर्स। सो दैट एनोमेरिक कार्बन या एनोमर इज आल्सो कॉल्ड ईपीमर, जिसमें हमारे पास सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे डिफरेंस ऑफ पोजीशन ऑफ इन एटम आती हैं, या ग्रुप्स आती हैं। ये ग्रुप या हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोजन की पोजीशन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे डिफरेंस हो जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एनोमर्स। एनोमर्स इज अ टाइप ऑफ ईपीमर। ठीक है, सो आई होप दैट विल बी क्लियर टू यू that is what is isomerism, stereomer, distereomer and epimer, and last one is enomer. Will join you inshallah in my next one lecture with reducing and non-reducing sugar. Thank you.